Hello, welcome you all. Myself Pransu Kumar Pathak. So dear guys, this lecture is about DNA replication, and I'm damn sure after the end of this lecture you will understand about basics of replications. Okay, so dear guys, this is really very vast topic, so we have to go slowly and then we will try to know each and everything from replication. ठीक है, तो हमारी कोशिश पूरी होगी कि आपको एक छोटी छोटी बात भी हम डीएनए रेप्लिकेशन का बताएं. ठीक है, जितना मुझे पता है. ठीक है, कोशिश करना है कि इस लेक्चर को बहुत ही छोटे छोटे यूनिट में मैंने तोड़ा है. ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि पूरा एक बार में अगर आप देखोगे तो आप बोर हो जाओगे. इसलिए मैंने क्या किया है, आई हैव डिवाइडेड इट इनटू द सब टॉपिक्स. ओके, सो फर्स्ट वी विल कवर the overview of DNA replications. Okay, so as you can see here, there are so many partners which is responsible for DNA replication. As you can see here, the DNA strand is first because DNA act as a template for DNA replications. ठीक है, तो DNA तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि DNA टेम्पलेट होगा तभी तो उस पर सिंथेसिस होगी. ठीक है, ये छोटी सी बात आपको याद रखना है. ठीक है, इसके सारे एंजाइम्स के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, कौन सा एंजाइम कैसे काम करता है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो आई हैव कवर्ड सम रेफरेंसेस, सो यू मस्ट हैव टू गो दिस बुक्स बिकॉज दिस बुक्स आर रियली वेरी गुड फॉर बायोकेमिस्ट्री एज वेल एज इंफॉर्मेशन ट्रांसफर in any organism. Okay, so I have gone through Garrett and Garisham, Lallinger, Watson and Benjamin. So these books are really very good for any molecular biology subjects. So dear friends, we will try to look each and everything in very short, and I have fragmented this lecture in very short lectures. Okay, so let's start. Okay, so first of all we will talk about E. coli genome. Each and everybody know about the E. coli genome. So it contains 46 किलोबेस पेयर. ठीक है, 4600 किलोबेस पेयर का इसका क्या होता है, इकोलाई का जीनोम होता है. ठीक है, ये इतनी बड़ी जीनोम जो है इकोलाई की होती है. और अगर एक्चुअली हम बात करें इसमें कितना होता है, तो इसमें जीन की संख्या होती है 4377 इन K12 strain, और Agrobacterium tumefaciens have number of gene 5419. Okay, so 4600 kilobase pair, this large genome is really very separated, and we will try to know about this E. coli genome first. Okay, so सबसे पहले हमने क्या किया है कि आपके लिए E. coli के मैप जो जीनोम है इसका, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं यह हमें जानने की कोशिश करना है. ठीक है, तो ये जो E. coli जीनोम है बेसिकली इनमें बहुत सारी बातें हैं जो छिपी हुई हैं. ठीक है, दिस स्लाइड कंटेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइज. ओके, सो एज यू कैन सी हियर दैट मिसमैच रिपेयर प्रोटीन दैट इज म्यूटेल. ठीक है, और सिंगल स्टैंडर्ड DNA बाइंडिंग प्रोटीन दैट इज SSB which is used in this replication process. DNA repair, DNA helicase, so you again use DNA helicase, RNA polymerase, subunit ROBB, ROPB, ROPC and DNA polymerase 1, DNA helicase, mismatch repair UBRD helicase that is rep. We will use this enzyme a lot. And replication of origin replication जो हम देखेंगे ये तो हर जगह इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, रेप्लिकेशन इनिशिएशन दैट इज DNA N और DNA A. ठीक है, अब आपको DNA गायरेज के बारे में देखना है, दैट इज रियली अगेन इम्पॉर्टेंट है ना. मिथाइलेशन के लिए जो हम एंजाइम यूज करते हैं वो डैम होता है. ठीक है, फिर हम देखेंगे RNA पॉलीमरेज, तो ये है प्राइमेज DNA-G. So basically a lot of things we will use in this replication process. देखिए मिसमैच रिपेयर में अगेन आएगा म्यूट H एंड म्यूट S. ऊपर में आपने देखा था म्यूट L. So right now I am not discussing about the DNA repair mechanism or mismatch repair, so I am not going into deep
deep, so just I am covering the E. coli genome map. So try to understand how this map is really important for you guys. Okay, I have taken this snapshot from Lahlinger book. So if you want to go and if you want to learn, try to go to that book also. Okay, so recombination and recombination repairs. So BCD enzyme है जो कि रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर में यूज होता है, और उस पर अगर हम जब फिर जाएंगे रिपेयर मैकेनिज्म में तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब है डीएनए लाइगेज. इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर ज्वाइंड, है ना, ड्यू टू डीएनए लाइगेज. सो डीएनए लाइगेज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज. ओके, फिर एपी एंडोन्यूक्लियस फिर रिपेयर मैकेनिज्म में यूज होगा. ठीक है, डीएनए रिपेयर, है ना, फिर है एक्सोन्यूक्लियस फर्स्ट. अब इधर देख लेते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड. दिस इज द मास्टरपीस इन replication process because this enzyme is basically involved for the DNA duplication process. Okay, so DNA polymerase third sub unit. ठीक है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे. और अब आप देख लो कि DNA polymerase 4 और DNA polymerase 5 is basically used in error prone replications. जैसे SOS response जब आता है, देखिए DNA polymerase जो 5 है SOS रिस्पॉन्स में बेसिकली बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि वहाँ पे E. coli क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए वो SOS रिस्पॉन्स को जनरेट करता है ताकि वो जिंदा रह सके. ठीक है, चलिए अब है पूरी रेप्लिकेशन अगर हो जाती है तो टर्मिनेशन साइट पे क्या होगी, जाके टर्मिनेट करेगी. तो मुझे अब इसको समझाने का क्या मतलब था, बिकॉज दिस इज द जिस्ट ऑफ योर रेप्लिकेशन और एनीथिंग फॉर E. coli जीनोम. सो इस जीनोम को अगर आप समझ जाओगे तो आपके लिए अंदर की चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी. इसीलिए मैंने इसको कट करके यहाँ पे लगाया ताकि आपको ब्यूटी पता चल सके कि कैसे एक जीनोम में इतनी सारी चीज़ें है. तो बहुत छोटा सा जीनोम E. coli का, बट इस छोटे से E. coli के जीनोम में कैसी सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड यू गाइज. ओके, सो टू अंडरस्टैंड ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी है, तो इसमें हम अंदर और नहीं जाएंगे. ठीक है, ये आप आराम से बैठ करके अच्छे से देखिए और कोशिश कीजिए कि इस सारे चीज़ों को एक आप भी पेन और कॉपी पे राइट कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए, और लिखने के बाद रियली यू विल फील वेरी फैंटास्टिक. यू नो, यू कैन अंडरस्टैंड रियली a lot of things from these points. Okay, so before starting the lecture we have some question for you. First question is why DNA replication, and second thing, prokaryotic and eukaryotic replication is same or different. So why DNA replication first? So इसका आंसर आपके पास A है. You know, this is your cell, this is nucleus, and this is the genetic material of that particular organism. If it is eukaryote, if it is prokaryote, then the genome is suspended in cytosol. ये तो बात है. अब क्यों जरूरत है? You know, basic thing is replication is just a process of reproduction. Okay, ये एक रिप्रोडक्शन है. समझना यही है कि रेप्लिकेशन कुछ नहीं, ये डीएनए का रिप्रोडक्शन है. एक डीएनए क्या करेगा, फिर से रिप्रोड्यूस होगा. ठीक है, ये सबसे बड़ा बेसिक फंडा है. अब हम कैसे जानेंगे कि ये पेरेंट स्ट्रैंड है और कैसे जानेंगे कि ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है. तो गाइज, इफ यू हैव पेरेंट स्ट्रैंड देन पेरेंट स्ट्रैंड मस्ट बी मिथाइलेटेड बाय डैन. और कैसे होगा हम आपको आगे बताएंगे. सबसे पहले तो यही जानकारी रखना है आपको कि इफ यू हैव पेरेंट स्ट्रैंड देन दैट मस्ट बी मिथाइलेटेड. पेरेंट स्ट्रैंड है तो मिथाइलेटेड होगा. वाई रेप्लिकेशन का आपका आंसर ये हुआ कि जब हम रिप्रोड्यूस करते हैं वैसे डीएनए का भी एक समय आता है जब एक सेल कहता है कि नहीं अब हमें दो होना है. घर का जैसे बंटवारा होता है वैसे ही सेल का भी बंटवारा होता है. तो सेल का बंटवारा होने का मतलब है कि सेल कहेगा कि नहीं हमें दो होना है, तो ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा. तो क्या होगा, सॉरी, तो
क्या बेसिकली फंडा अपनाएगा सेल कहेगा ठीक है, अब वो क्या करेगा, डीएनए जो है उसको क्या करेगा, दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा, मतलब जस्ट इसका फोटोकॉपी तैयार करेगा और फोटोकॉपी कहेगा एक तुम रख लो एक तुम रख लो, ठीक है, और फिर इस तरह से दो सेल में वो डिवाइड होगा, ठीक है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो। रेप्लिकेशन का बेसिक फंडा यह है कि एक से दो कॉपी बनना, ठीक है, एक पैरेंटल स्ट्रैंड जनरेट होगा दो डॉटर डीएनए में, ठीक है, ये बेसिक फंडा है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब आपको क्या सोचना है कि ठीक है, मान लिया कि डीएनए रेप्लिकेशन जरूरी है, क्या दोनों जैसे वी हैव प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोथ, ओके, सो is the replication process is same or different in both organisms? This is entirely very different, guys. So we will cover it in two different part, first for prokaryote and second for eukaryotic organism, okay. So यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात मैंने लिखी है, for life continuity replication is in vivo duplication tools। अगर आपसे कहे कि in vitro duplication tools क्या है तो आप क्या बोलोगे? इन विट्रो है भैया पीसीआर, ठीक है, पीसीआर में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, वही काम तो करते हैं, वी जस्ट प्रोवाइड दैट इज योर टेम्पलेट एंड यू विल प्रोवाइड अ प्राइमर। आप खुद से प्राइमिंग कर रहे हैं और अब क्या होगा कि ये स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा आर्टिफिशियली बाय द हेल्प ऑफ पीसीआर मशीन। बट इन विवो तो भैया डीएनए रेप्लिकेशन ही कर सकता है, इन विट्रो पीसीआर मशीन करेगा, लेकिन इन विवो की जब बात करेंगे तो क्या करेगा, दैट इज ओनली प्रोग्रेस्ड बाय डीएनए रेप्लिकेशन। तो दिस इज ए डुप्लीकेशन टूल। और कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर जो आप देखेंगे वो तीन भागों में बटा रहेगा, है ना, चाहे वो रेप्लिकेशन हो, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, दैट शुड बी इनिशिएटेड, मस्ट बी elongated एंड फर्दर इट शुड बी टर्मिनेटेड ऑल्सो। सो डीएनए रेप्लिकेशन के तीन पार्ट हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, ओके। अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं स्लाइड से, ठीक है। अब है डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन से मैंने कई बातें बाहर निकाली हैं, वो क्या कहती हैं। सो डीएनए इज ए कॉपिंग टेक्नोलॉजी। अगर कोई बुक है, ठीक है, बुक का कोई पेज है जो कि समझिए कि आपके लिए भी ज़रूरी है और दूसरे इंसान के लिए भी ज़रूरी है। सपोज कि ए एंड बी दो स्टूडेंट हैं और दोनों को यह पेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फाड़ के तो नहीं दे देंगे कि लो भाई आधा तुम रख लो आधा तुम रख लो, तो हम क्या करेंगे, जस्ट हम उसे डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने का बढ़िया रूल क्या है कि हम उसके ले जाएंगे जीरोक्स करके, कॉपी करके, एक उसको दे देंगे एक उसको दे देंगे। दिस इज द बेस्ट वे टू सेटिस्फाइड बोथ स्टूडेंट्स, ओके। अगर हमारे पास दो स्टूडेंट हैं तो हम दोनों को फोटो कॉपी करके एक उनको दे देंगे एक उनको देखना है, ओरिजिनल हम खुद के पास रखेंगे। इन फ्यूचर केस अगर कोई और मांगेगा तो फिर फोटो कॉपी करके हम तीसरे व्यक्ति को दे देंगे, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक ऑफ दिस ऑल थिंग्स। नाउ टू अंडरस्टैंड गाइज द प्रिंसिपल, सो दिस इज द बेसिक फॉर इनहेरिटेंस बायोलॉजी। क्या इनहेरिट करता है, डीएनए। तो डीएनए कैसे डुप्लीकेट होगा, थ्रू रेप्लिकेशन। सो इनहेरिटेंस बायोलॉजी ऑल्सो कवर क्या, डीएनए रेप्लिकेशन। सो अगर डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा तो इनहेरिटेंस की भी कहानी कुछ नहीं होगी, ठीक है, समझ में आया। सो ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे सेंट्रल डोग्मा का जो पहला जो काम है ना, जो सेंट्रल डोग्मा है उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, दैट इज द डीएनए रेप्लिकेशन। इट हैपन इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, वायरल डीएनए डुप्लीकेशन एंड सो forth। बायोलॉजिकल प्रोसेस अकर इन एवरी लिविंग इंडिविजुअल। जो भी लिविंग इंडिविजुअल होगा उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा। एंड बेसिक थिंग इज द सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन ही तो है जो डीएनए रेप्लिकेशन को प्रोग्रेस कराता है। सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया, बेसिक ऑफ सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर हुई। एनी डाउट यू हैव, सो कमेंट इट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट इट, ओके। नाउ you can see the replication process ensure that perfect and exact copy of the genetic information from cell to cell during the growth and development of organism। अगर कोई organism growth में है
या डेवलपमेंटल फेज में है तो उसे डिवाइड करना है, और एग्जैक्ट अगर वो सोमैटिक सेल है तो उनका नेचर बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर गैमेटिक सेल है तो यहाँ पे 2n होना चाहिए, ठीक है, और गैमिट है तो क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल होती हैं वो सारा रेप्लिकेशन में कंट्रोल होती हैं, ठीक है। तो अगर डीएनए रेप्लिकेशन फेल हुआ, इफ डीएनए रेप्लिकेशन फेल, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? रिजल्ट इज माइटोसिस एंड मियोसिस बोथ विल halted. अंडरस्टैंड गाइज? एनी प्रॉब्लम यू हैव? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक बहुत बड़ी बात क्या है, करेक्ट बेस पेयरिंग आर रिक्वायर्ड फॉर डीएनए पॉलीमरेज टू कैटलाइज द न्यूक्लियोटाइड एडिशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर करेक्ट बेस पेयर नहीं गया तो वहां पे बेस पेयरिंग नहीं होगी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो करेक्ट बेस पेयर आर रिक्वायर्ड फॉर डीएनए पॉलीमरेज टू कैटलाइज द न्यूक्लियोटाइड एडिशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है, यहाँ पे आपका परफेक्ट न्यूक्लियोटाइड आकर के बाइंड किया तो ये प्रोसेस आगे बढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे आपका जो बेस पेयर है वो एडेनिन है और यहाँ पे गुआनिन। सो एडेनिन गुआनिन से पेयर नहीं कर सकता, साइटोसिन एडेनिन से पेयर नहीं कर सकता, तो यहाँ पे जो प्रोग्रेस रिएक्शन है वो हॉल्ट हो जाएगा और परफेक्ट मैचिंग के कारण नहीं होने के कारण ये प्रोग्रेस नहीं करेगा। सेकंड, रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ओके। सो क्या होता है, जो पॉकेट होता है पॉलीमरेज का वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे देखिए टी है, यहाँ पे यूरेसिल आ गया, अगर यहाँ पे 2' OH हुआ, अब जैसे कि हमने बताया भी है शुगर के बारे में, अगर आप नहीं उस लेक्चर को देखें तो जाके आप शुगर के लेक्चर को देखिए। वहाँ पे आरएनए में मैंने क्या बोला था, वहाँ पे 2' जो होता है वो हाइड्रोक्सिलेटेड होता है, वहाँ पे OH ग्रुप का प्रेजेंस होता है। इसके कारण क्या हुआ कि वो आसानी से बैठ नहीं पाया, यानी कि अगर डीएनए का बेस होगा तो ठीक है, अगर आरएनटीपी होगा तो वो फिर से वो पॉकेट में नहीं बैठेगा डीएनए पॉलीमरेज के, और फिर जो आगे का प्रोसेस है वो फिर क्या होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि यू मस्ट हैव डीएनटीपीज rather than RNTPs and perfect base pairing is also required. अगर आपका जो डीएनए पॉलीमरेज है करेक्ट बेस पेयर नहीं हुआ तो भी आपका जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन है वो होल्ड कर जाएगा, और अगर RNTPs आ गया DNTPs की जगह तो भी आपका डीएनए पॉलीमरेज उसे डिस्क्रिमिनेट कर देगा और फिर आगे की प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगी। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़े। चलिए, सो सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोसेसिबिलिटी। कहते हैं ना कि कौन कितना इफेक्टिव है। अगर हम और एक कोई और दूसरा इंसान, ठीक है, हम दो व्यक्ति हैं, एक जो है 8 घंटा काम कर सकता है, एक 12 घंटा काम कर सकता है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? अगर आप एज ए कंपनी के मालिक हैं तो आप क्या सोचेंगे? आपकी यही होगी भाई 12 घंटा 14 घंटा काम करने वाला हमको एम्प्लॉय मिले, है ना, 8 घंटे वाला क्यों मिले, ठीक है। तो ये प्रोसेसिबिलिटी और एक चीज़ है, अब ये भी डिपेंड करता है कि कौन क्या काम करता है। एक 12 घंटा बैठ के भी उतना ही काम कर रहा है और एक 8 घंटा भी बैठ के भी उतना ही काम कर रहा है, तो कौन इफिशिएंट हुआ? 8 घंटे वाला, है ना। तो ये डिपेंड करता है प्रोसेसिबिलिटी का मतलब आप क्या समझते हो। सो डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, वो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। तो प्रोकैरियोट्स में प्रोसेसिबिलिटी होती है जो डीएनए पॉलीमरेज की, वो 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड होती है, और यही यूकैरियोट में अगर आप चले जाएंगे तो दैट विल लिमिट टू 100 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। सो किसका जल्दी होगा? अगर रेप्लिकेशन होगा तो इजिली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का होगा रेदर देन यूकैरियोट। इसका रीजन आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखें कि ऐसा क्यों होगा, ठीक है। नाउ द स्पीड ऑफ डीएनए सिंथेसिस इज largely due to the processive nature of DNA polymerase. Processivity is a characteristic of enzyme that operate the polymeric substrate. Polymeric substrate कैसे? DNTPs जो है
वो एडेनिन का भी हो सकता है, गुआनिन का भी हो सकता है, साइटोसिन का भी हो सकता है, थाइमिन का भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, पॉलीमेरिक सबस्ट्रेट कहा गया है, बिकॉज डीएनए जो कंपोज होता है वो ए, जी, सी, टी सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो डीएनटीपीज कहने का मतलब इस सारे सबसेट के लिए काम करता है डीएनए पॉलीमरेज। ओके, इन केस डीएनए पॉलीमरेज द डिग्री ऑफ प्रोसेसिविटी इज डिफाइंड एज एवरेज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एडेड ईच टाइम द एंजाइम बाइंड्स ए प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। ठीक है, प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन क्या होता है? अगर कोई पीसीआर देखा होगा तो उसे समझ में बहुत आसानी से आएगा। ए टेम्पलेट है और ए आपका प्राइमर है। ठीक है, कोई डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इतना सिंथेसाइज करके होल्ड कर गया और दूसरा पॉलीमरेज है जो पूरा फ्रैगमेंट को सिंथेसाइज कर दिया, तो प्रोसेसिविटी किसकी हाई हुई? सेकंड वाले की। ठीक है, समझ में आई बात? आगे बढ़े, चलिए। और इसको हम डायग्राम से भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सो लीजिए, दिस इज द डायग्राम। यू कैन सी आफ्टर एडिंग वन न्यूक्लियोटाइड द डीएनए पॉलीमरेज इज aborted. So this is non-processive DNA polymerase. इसकी जो प्रोसेसिविटी है वो बहुत ही कम है। और जब उधर देख लें तो ये क्या हुआ, पूरी की पूरी डीएनए जो है बहुत सारे डीएनटीपीज को ऐड कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एक हाईली प्रोसेसिव सीक्वेंस ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स हम कह सकते हैं। तो समझ में आई प्रोसेसिविटी? आगे बढ़े, चलिए। अब हम थोड़ा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिस्कस कर लें कि क्या कर सकता है हमारा नाइट्रोजिनस बेस, और इसे हम कहें मॉडिफाइड बेसिस, कैसे जो एनालॉग्स हैं वो कैसे यूज होते हैं कैंसर के थेरेपीज में। ओके, सो सेंट्रल रोल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन मेक्स इट्स कॉमन टारगेट फॉर कीमोथेरेपिक ड्रग्स दैट एम टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। कीमोथेरेपी में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, ट्यूमर को रोकने की कोशिश करते हैं। दिस ड्रग्स दैट टारगेट डीएनए रेप्लिकेशन they can be at various stages. Okay, so several common chemotherapy reagents target biosynthesis of nucleotide precursor of DNA, thus starving DNA polymerase for new building block. अगर DNA polymerase को नया सबस्ट्रेट मिलेगा ही नहीं तो वो आगे क्या होगा, स्टार्विंग कहने का मतलब उसे मिल ही नहीं रहा, तो आगे वो सिंथेसिस नहीं करेगा, हॉल्ट कर जाएगा, रुक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ड्रग 5-fluorouracil and 6-mercaptopurine are analog of nucleotide precursor that inhibit the synthesis of pyrimidine and purine nucleotide respectively. So ये जो 5-fluorouracil है एक मेजर एजेंट है जो कि कोलोरेक्टल जो कैंसर होता है, कोलोन कैंसर जो होता है, उसके ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, चाहे वो स्टमक का हो या पैंक्रियाटिक कैंसर हो, इवन ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ठीक है, 6-mercaptopurine जो है वो भी कैंसर के लिए उपयोग होता है, जो कि एक्यूट ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर है, उसमें हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, एक है साइटोसिन अरेबिनोसाइट इज ए डीऑक्सीसाइटिडीन एनालॉग फॉर आफ्टर कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इनटू डीएनए दैट प्लेस DCTP। ठीक है, अगर ए जाता है तो ये अगेन क्या है, लीड्स टू और ए भी एक्यूट ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में उपयोगी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको पढ़ें, यह आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है ताकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम कोई भी टारगेट को कैसे हम रोकते हैं और कैसे हम किसी चीज़ को इफ़िशियंट यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे साइंटिस्टों ने क्या किया कि जो दिस बेस के जो एनालॉग्स हैं उनको यूज करके डीएनए पॉलीमरेज को रोकने की कोशिश करते हैं, और डीएनए पॉलीमरेज जैसे ही रुकता है तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, हॉल्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये भी है AZT जो कि वायरल जैसे HIV के पेशेंट्स को AZT दिया जाता है। AZT क्या करता है, ये भी कहीं ना कहीं जाकर के ट्रांसक्रिप्शन को क्या करता है, रोकता है। जैसे वायरस क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ही तो करता है। क्या करता है, RNA से DNA बनाता है। रेट्रोवायरस है ना HIV, तो RNA से क्या होगा, DNA बनेगा। तो ये क्या करेगा, वहाँ पे जो DNA पॉलीमरेज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैसा पॉलीमरेज है, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। ठीक है,
तो AZT क्या करता है, वहां पे पॉलीमरेज इनहिबिटर की तरह काम करता है। ठीक है, इसी तरह से एक है क्या, एसाइक्लोविर। एसाइक्लोविर क्या करता है कि हेपेस सिंपल वायरस जो है उसको क्या करता है, यहाँ पे जो इसका डीएनए पॉलीमरेज है, जो डीएनए सिंथेसिस होती है, उसको हॉल्ट कर देता है। तो ये सारे जो ड्रग्स हैं वो खास करके क्या होता है, कीमोथेरेपी में, तो वायरस ट्रीटमेंट में, HIV पेशेंट हो, चाहे हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस का अगर इन्फेक्शन होता है, तो ये सारी दवाइयाँ एज ए मेडिसिन यूज की जाती हैं। दीज ऑल आर अ एनालॉग फॉर न्यूक्लियोटाइड्स, दैट फॉर नाइट्रोजनस बेस। ओके, समझ में आई? So thank you so much for watching the part 1. We will just back. Thank you so much for watching my lecture. So we will come as soon as possible. So this is part 1. Thank you so much.